Hello students, my name is बीरबल शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स पीसीसीपी रेजिडेंस कोटा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ is assumed to be homogeneous and completely spherical. Okay, earth is supposed to be homogeneous and completely spherical. इस टाइप से homogeneous and completely spherical. Mass m and radius capital R. Okay, it is capital R, or mass is m, completely spherical. We know that the on surface g is equals to 9.8 meter per second square, and what is the formula of g? G is equals to gm upon r square. G is constant. We can write, because of mass is equals to volume 4 by 3 pi r q into density. Here rho is the density, average density of earth, it is to be found. Okay, so then put here g is equals to g into 4 by 3 pi r q into rho divided by r square. ये cancel. So what is the rho? Rho will be equals to, we can put here g upon capital G into 4 by 3 into pi into r. Is it clear? We know very well that is 3 into 9.8. 9.1. The value of capital G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 4 into pi 3.14 to only 3.14. That is into r, that is 6.4 into 10 raised to the power 6 kilometer. Meter converted into meter, so that is approximate 5000 kilogram per meter cube. We can also find the relative density of earth. Earth means relative average, that is equal to density of earth upon density of water at 4 degrees Celsius, that is 5500 divided by 1000, that is how much? 5.5. It is the relative density of earth. Relative means it is compared to the density of water at 4 degrees Celsius, the density, average density. Now next, gravitational potential energy. Next topic, most important topic, gravitational potential energy. It's a topic. How we'll define this one and what will be the formula for this one? Suppose it is the earth, ये earth है. Okay, its radius is capital R. The earth, radius is, this point is center, radius is r and mass is capital M, mass. It is the radius. How we will define? Suppose कीजिए इसका इफेक्ट यहाँ तक है, इस पॉइंट तक, it is infinity. Okay, if we place any object is here, then there will be no effect of earth. Then this point is infinity. Infinity does not mean बहुत दूर है, जहाँ इसका इफेक्ट खत्म हो, वैसे भी इसका रेंज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग रेंज होता है. तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ए. सपोज दिस डिस्टेंस इज r, here an object is placed m. Okay, an object. So first of all, how we will define the gravitational potential energy? The work done in bringing
an object, bringing an object from infinity to any point, in the gravitational field is clear, from infinity to a point in the gravitational field. अब याद रखिएगा, without accelerating. Why it is without accelerating? We have count, because we have to count only gravitational potential energy, not kinetic. अगर स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक भी कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? अब थिंक अबाउट दिस. अगर ऑब्जेक्ट को यहां से लाऊंगा, यहां पर रखूंगा इस पॉइंट पर, और इधर मूव कराऊंगा, देन देयर विल बी, इट इज अट्रैक्टेड बाय दिस, सो इट विल एक्सीलरेट. तो मैं क्या करूंगा, इधर से इतना ही फोर्स लगा दूंगा जो ये डी एक्सीलरेट ना हो. फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट. अब मुझे जैसे ही अंदर एंटर कराऊंगा यहाँ पर, तो दिस इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, अट्रैक्शन फोर्स विल इंक्रीज. ओके, एक्सीलरेट होगा ये, तो मुझे उतना ही फोर्स इधर से लगाना है. तो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, नॉट बाय ग्रेविटी, बाय द एक्सटर्नल फोर्स. इज इट क्लियर? तो फोर्स वर्क इज, या कहिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेरिएबल. लेकिन हमें तो वर्क फाइंड करना है. सो टू फाइंड वर्क डन we will divide total distance from surface of earth. ऐसा कीजिए, from A to infinity into small parts. Is it clear? Into small parts. Why? जिससे कि स्मॉल पार्ट पर डिस्प्लेस करूंगा, देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कांस्टेंट एट दैट पार्ट. फॉर एग्जांपल, इट इज ए, इट इज A1, इट इज A2, A3 एंड सो ऑन. इट इज AN-1, इट इज AN. दिस पॉइंट इज AN. इज क्लियर? AN. दिस डिस्टेंस R, इट इज, देखिए, इट इज R1, इट इज R2, R3, या यहां तक लीजिए R, N-1, इट इज सेंटर से लिया मैंने, ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इट इज Rn. ओके, Rn, वैसे Rn विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी फाइनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वर्क from A to A1, A1 to A2, A2 to A3 and so on up to infinity. But याद रखना, we have to find the work done from infinity to. क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? What is the reason? अगर मैं इधर से लाऊंगा तो distances are measured from this, तो displacement will be just opposite. Clear? Object आ रहा है इधर, object इधर आ रहा है, और we have to find the work done by the external force. इधर से लगाना पड़ेगा, तो work done must be negative होना चाहिए ना. अब प्रॉब्लम केवल आ सकती है अगर इधर लाओगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए AN से इधर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए दिस माइनस दिस, AN-1 माइनस AN, जबकि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम AN टू AN-1. तो इस प्रॉब्लम से हटने के लिए हमने क्या किया, A से A1 तक, A1 से A2 तक. तो सपोज कीजिए, सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ मास M is placed at A. So force on object by earth कितना होगा? चलिए F1 G M डिवाइडेड बाई, यहां रखा हुआ है M, ओके, डिवाइडेड बाई
R1 square. Okay, if object is placed at A1 अगर इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा फोर्स A1, देन फोर्स F2 will be equals to Gm डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर. अब देखिए द डिस्टेंस A to A1 इज वेरी स्मॉल. डिस्टेंस फ्रॉम A to A1 is very small. So, force F1 and F2, they are approximately same, not exactly. F2R has less difference. जब लेस डिफरेंस हो तो हम यहां से यहां तक वर्क डन फाइंड करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं मुझे नेट फोर्स चाहिए जो यहां से यहां तक चेंज नहीं हो, तो एवरेज फोर्स. सो एवरेज फोर्स बिटवीन A to A1, A से लेके A1 तक एवरेज फोर्स फाइंड करना है मुझे. क्लियर है? क्या करूंगा बोलिए. दैट इज F विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 एंड F2 बाई ज्योमेट्रिकल मीन. ज्योमेट्रिकल मीन जब डिफरेंस कम होता है तो ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू Gm और डिवाइडेड बाई दिस वन R एंड R1 अपॉन R एंड R1. इज इट क्लियर? स्क्वायर रूट F1 F2 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये आएगा. अब देखिए मुझे यहां से यहां तक डिस्प्लेस करना है, ये डिस्प्लेस. वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फ्रॉम A to A1 इन डिस्प्लेसिंग. तो देखिए वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट of mass m from A to A1 क्या आएगा. चलिए W1 फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट A से A1 तक ले रहा हूं तो ये होगा R1, ये R1 माइनस R, दैट इज R1 माइनस R. इज इट क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? सो W विल बी इक्वल्स टू G, आपकी वैल्यू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, R1 इंटू R1 माइनस R. तो व्हाट इज W1 विल बी इक्वल्स टू G M, इसको डिवाइड कर दीजिए R1 से R1 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन. इज इट क्लियर और नॉट? एट नंबर 1. बस यही इंपॉर्टेंट था, अब कुछ नहीं करना मुझे. देखिए अभी मैंने वर्क फाइंड किया फ्रॉम A to A1, अब फाइंड करूंगा A1 to A2. नाउ वर्क डन फ्रॉम A1 to A2, सीधा W2 विल बी इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m इनटू A से A1 तक था तो आएगा 1 अपॉन R माइनस R1. अब A1 से तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 नंबर 2. इसी तरह आगे फाइंड करूंगा. इज इट क्लियर? चलिए और एक और फाइंड कर लीजिए. फ्रॉम A2 to A3 वर्क डन W3 विल बी इक्वल्स टू Gm इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन. सारा फाइंड करना है मुझे. अब लास्ट देखिए फ्रॉम An माइनस 1 टू An, तो वर्क डन फ्रॉम An माइनस 1 टू An, Wn लिख लो इसको मैं, क्या आएगा Gm 1 अपॉन R n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन Rn. इज इट क्लियर और नॉट? भाई A से A1 तक था तो R माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. अब An माइनस 1 टू An, तो वर्क डन इज स्केलर. तो नेट वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2 इज स्केलर.
प्लस WN ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए ऐड करने पर क्या होगा, दैट इज 1/r, R1, ये और ये कैंसिल, देखिए ओके, ये और ये कैंसिल, इसी तरह से कैंसिल होता जाएगा, इट इज कैंसिल। क्या बच रहा है मेरे पास, GMM, और यहाँ बच रहा है 1/r माइनस 1/r1। तो व्हाट इज नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन विल बी net work done in bringing object of mass m from A to AN, A to AN क्या आ रहा है देखिए, W will be is equals to G M M into, यहाँ बच रहा है केवल मेरा RN 1/r माइनस 1/rn। इज इट क्लियर, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, देख लीजिए इंपॉर्टेंट है ये, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, मुझे उल्टा लाना है, इधर लाना है ऑब्जेक्ट को ऐसे, तो व्हाट इज नेगेटिव कर दूंगा, दैट इज W, यही होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, दैट इज, देख लीजिए दैट इज क्या आ रहा है, G फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, क्या आएगा W, इट इज पोटेंशियल एनर्जी U, दैट इक्वल टू G M M 1/r माइनस 1/infinity बिकॉज Rn इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लेकिन Y नेगेटिव, जस्ट अपोजिट कर दिया डायरेक्शन मैंने। इज इट क्लियर, सो U विल बी इक्वल टू माइनस G M M डिवाइडेड बाई एट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at point A, whose distance is from the center of earth is small r. Okay, चलिए on the surface of earth, surface of earth, what is the potential energy on surface, that will be minus G M M divided by, अब मुझे यहाँ नहीं यहाँ तक लाना है, infinity to r, capital R तक, on the surface of earth. Is it clear? चलिए एक मेथड और लेते हैं इसका, अगर ये नहीं इतना क्लियर है तो एक मेथड और, सेकंड मेथड देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, बाय इंटीग्रेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय इंटीग्रेशन मेथड, इट द अर्थ, देखिए इट इज द अर्थ, ओके, इट्स रेडियस इज कैपिटल R, here is infinity, okay, this radius is capital R, इसका radius है capital R, this point is O, this distance is R, we have to find, यहाँ तक लाना है ऑब्जेक्ट को, okay, because force is variable, तो मैंने ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है at a distance of x, यहाँ रखा है, मास m, object of mass m is placed at a distance x, okay, force on object by earth क्या होगा जरा बताओ, by earth will be F is equals to G M M divided by x square। अब मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस करूंगा, यहां तक डिस्प्लेस करना है मुझे, dx, on displacing by small distance dx, okay, work done dw will be equals to F into dx, F की वैल्यू है G M M डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू dx।
अब मुझे करना है इन्फिनिटी टू दिस, सो नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम infinity to a, okay, that will be equals to potential energy u, क्या करूं मैं, dw from infinity to a, that's r, और इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है, ओके, क्या आएगा देखिए, फ्रॉम g m into infinity to r x to the power -2 dx, सॉल्व कीजिए, क्या रहा, जी m इंटीग्रेट किया x to the power -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, दैट विल जी एम इंटू 1/x, नेगेटिव आएगा, माइनस यहाँ ले लूँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, लिमिट सॉल्व करना जानते हैं आप, u विल बी इक्वल टू -GM डिवाइडेड बाई r -0, so what is the value of u, -GM by that's r, किसी भी फॉर्मूले से फाइंड कीजिए पोटेंशियल एनर्जी, ओके। नाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों में से किसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, gravitational potential, how we will define, gravitational potential, तो ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग ओके एन ऑब्जेक्ट of mass 1 kilogram, an object of mass 1 kilogram from infinity to any point, infinity to any point in the gravitational field, why without, yes, slowly. Why it is slowly? We have to find potential, not kinetic. Slowly is known as gravitational potential at that point. ओके, अब देखिए क्या आएगा, अभी मैंने किया था, ये यहां से यहां तक इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक लाया था, याद है आपको, आर डिस्टेंस तक, इट इज अर्थ मास m और इज रेडियस इज कैपिटल R, क्या था, देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग m मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू a इज कितना था बताइए, -GM/r, so work done in bringing, यही था पोटेंशियल एनर्जी u, work done in bringing 1 kilogram mass from infinity to a, क्या होगा, that is potential, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये हो गया u/m, कितना आएगा जरा बताओ, -GM डिवाइडेड बाई r, इज इट क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब वन क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन इज these are the four masses, 1 kilogram, ये 1 meter, it's also 1 meter square है, 1 meter, m1 is equals to 1 kilogram, m2 is equals to 2 kilogram, m3 is equals to
3 kilogram and M4 is equals to 4 kilogram. Find potential energy of the system. तो देखिए कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, निकाल सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले आएगा U will be equals to, first of all U12 plus U12 23 plus U34 plus U41 plus ये और ये भी तो पेयर बन रहा है ना, क्या आएगा U13 plus U24. We can easily find what is the value of U. G, M, M1, M2, ये और ये 1 into 2 divided by 1 but negative. Is it clear? अच्छा, आप 2 3 फाइंड कीजिए। 2 3 पे होगा माइनस G 2 into 3 divided by 1 minus G into 3 into 3 4 3 into 4 divided by 1 minus G 4 into 1 divided by 1 minus, अब ये पेयर चाहिए मुझे, दैट इज 1 3 का होगा U G into 1 into 3 divided by, it is √2, ये भी √2 होगा, it is √2 minus G, is it clear, minus G और 2 4 into 2 into 4 divided by √2 कर सकता हूँ। U will be equals to G कॉमन ले लूँ, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 12 माइनस 4 प्लस 4 और प्लस 3 बाई √2 और प्लस 8 बाई √2, that is U will be equals to minus 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 2 or 4 6 12 24 plus 3 plus 8 11 by √2. It's the answer. It's the answer. We can find the potential at the point. चलिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, ये अपने पर थोड़ी करेगा। Also find, if we have to find gravitational potential at M1 इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो क्या आएगा देखिए, सॉल्यूशन देखिए जरा। V will be equals to ड्यू टू 2, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस G M मतलब 2 डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस R, दैट इज 1 माइनस ये प्रोड्यूस करेगा तो कितना आएगा, माइनस G इंटू 3 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस √2, अब ये भी तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो माइनस G इंटू 4 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो 1 मीटर, दैट्स 1। तो V एट पॉइंट M1 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस G इंटू 2 प्लस 3 बाई √2 और प्लस 4, दैट इज हाउ मच, minus 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 6 plus 3 by √2 at the gravitational potential. We can easily find the unit, okay, joule per kilogram. Is it clear? The gravitational potential and gravitational potential energy. Now one more question, एक और क्वेश्चन लेते हैं। Question 2, okay, it's a triangle, okay, this side is 2 meter, it is also 2 meter, 2 meter, here is placed 2 kilogram, it is 4 kilogram, it is 5 kilogram, okay,
this point is A, this point is B, this point is C. Find gravitational potential at A. तो यहाँ कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा. इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशन देखिए जरा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट A, that is V will be equals to VA due to 4 किलोग्राम and due to 5 किलोग्राम. वो तो प्रोड्यूस करेगा नहीं. V due to 4 किलोग्राम प्लस V due to that is 5 किलोग्राम. आंसर क्या होगा? ये होगा माइनस G इंटू 4 GM अपॉन R. GM अपॉन R, R मीन्स 2, और माइनस ड्यू टू 5 तो माइनस G इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माइनस G इंटू 2 प्लस 5/2, दैट इज माइनस 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये आएगा 2 2 या 4 9/2. इज क्लियर? 9/2 मीन्स 4.5. ओके, दैट इज डिवाइड करें तो वी कैन फाइंड इजीली, दैट इज किलोग्राम. इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर किलोग्राम. अच्छा, नेक्स्ट VA. क्वेश्चन थर्ड, ऑल्सो फाइंड gravitational potential energy of the system. You can find easily or not? चलिए मैं फाइंड करके बताता हूँ. U will be equals to U, ये पेयर और ये पेयर. ओके, here is suppose M1, it is M2, it is M3. तो we can find U1 2 plus U2 3 plus U3 1. तो U will equal to minus G, that is 2 and 2 4 divided by distance. How much? 2 minus G, ये वाला पेयर 4 into 5 divided by this distance 2 minus G into 2 into 5 divided by 2, that is minus G into, ये कैंसिल और ये भी 2 टाइम कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आएगा 4 प्लस 10 प्लस 5, दैट इज हाउ मच? माइनस 19G. ओके, जूल. 19G जूल. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए 3rd. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is raised up to a height h from surface of earth. Then find change in potential energy of the object. ओके, चलिए सॉल्यूशन देखिए जरा. इट द अर्थ, ये अर्थ, इसका रेडियस है r. ओके, चलिए ये लिख लेता हूं. इट इज r, मास इज कैपिटल M, ऑब्जेक्ट यहां रखा था m. किस हाइट तक ले गया मैं इसको? h हाइट तक यहां ले गया, मूव किया मैंने. ओके, यू हैव टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सरफेस, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, then potential energy
यू आई इनिशियल मान लूँ मैं इसको, यू आई दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब एट हाइट एच पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ क्या आएगा, यू फाइनल माइनस जी एम एम डिवाइड बाई अब डिस्टेंस इसका आर प्लस, इट इज फाइनल। इज इट क्लियर? ओके, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल मालूम है मुझे, यू इनिशियल भी मालूम है, क्या आएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच माइनस माइनस प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। इज इट क्लियर? चलिए एलसीएम ले लीजिए, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू आर इंटू आर प्लस एच। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आर प्लस एच कैंसिल, ओनली आर, जी एम एम कॉमन ले लूं मैं, जी एम एम कॉमन, जब इसको इसके डिवाइड करूंगा तो ओनली आर माइनस का आर प्लस आर से कैंसिल, दैट इज आर प्लस एच, इट इज कैंसिल्ड। ओके, and what the value of delta u is equals to g m m into h divided by r into r plus h. Is it clear or not? Okay, आगे देखिए। Now what is delta u? Delta u will be equals to g m m into h divided by r, इसमें से r कॉमन ले लूँ मैं, क्या आएगा, r इंटू वन प्लस एच अपॉन आर। इस ब्रैकेट को ओपन करके देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा, r से इस ब्रैकेट को ओपन करके देखिए, ये हो गया डेल्टा u विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जी एम एम इंटू एच इंटू वन प्लस एच अपॉन आर। Do you know what it is? Here Gm divided by r square is G on surface of earth, और इसकी वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो वैल्यू मुझे मालूम है, तो G पुट कर सकता हूँ, क्या आएगा देखिए। सो व्हाट इज डेल्टा यू, एम जी एच डिवाइड बाई वन प्लस एच अपॉन आर, एच अपॉन आर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कब यूज करेंगे आप, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच, किसी वैल्यू के लिए, एनी वैल्यू ऑफ एच। देखिए, इफ एच इज वेरी 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 लेस देन आर, देन वी कैन नेग्लेक्ट एच अपॉन आर, ये बहुत छोटा होगा, देन वी कैन नेग्लेक्ट एच अपॉन आर। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, सिंपली एट द पोटेंशियल एनर्जी, कम हाइट के लिए लूंगा, याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। An object of mass m, okay, is lifted up to a height of h is equals to r by 2 from surface of
earth, surface of earth, find change in potential energy of the object. कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला या ये वाला? इट इज mgh. तो सिंपली ओके, लेस नहीं है, बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ डेल्टा u इज mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h अपॉन r, बिकॉज ऑफ व्हाट इज h, r बाई 2. पुट हियर एंड फाइंड. क्या आएगा आंसर? डेल्टा u, that will m into g into r by 2 whole divided by 1 plus at the place of r, at the place of h, r by 2 into r. ये cancel, that is 1 by 2. It is mgh, mgr into half, it is half, or whole divided by what? 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2. यहाँ पर एम जी एच 3 बाई 2 का मतलब दैट इज 1 बाई 2 दिस वन, और 3 बाई 2 2 ऊपर, 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3, दैट कैंसिल. व्हाट इज डेल्टा यू? 1 बाई 3 एम जी एंड एच. इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. आप सोचिए जरा, अगर डेल्टा यू एम जी एच लगाते तो सिंपली एम जी एच बाई 2 आता, एम जी एच बाई 2. अगर ये फॉर्मूला यूज करता डेल्टा यू इज टू एम जी एच, तो क्या था? एम जी इंटू एच बाई हाफ आता, जबकि एम बाई 3. ओके, बिकॉज एच कम नहीं है, छोटा नहीं है, नॉट लेस, so we will use this formula. Is it clear? Okay. Now the next lecture on external satellite.